Hello students, now we are doing the sum. The perpendicular from the origin to a line meets it at the point -29. Find the equations of the line. तो student सबसे पहले we will be discuss what we have given in the statement. तो student ये हमारा x and y कोऑर्डिनेट है। ये एक लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन को फाइंड करना है एंड दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस से एट पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट बी। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ किया है वो से एट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड 9। ये परपेंडिकुलर जिस लाइन की हमने इक्वेशन को फाइंड करना है इस पॉइंट पर मिलता है जिसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड 9। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ विल वी फाइंड द इक्वेशंस ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अब इस केस में स्टूडेंट्स वी नो वी विल बी the equations of a straight line which passes through a point whose coordinate x1 y1 and p be any point whose coordinate say xy। तो हम क्या यूज करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म फॉर्मूला दैट इज y minus y1 equal to mx minus x1। Now in this case students x1 and y1 हमें ज्ञात है but we do not know the slope of this line। अब इस लाइन की स्लोप को कैसे फाइंड करेंगे। वी नो वेरी वेल, ये मैंने आर्टिकल पहले भी करवा दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इक्वल टू -1। अब देखें स्टूडेंट्स, जिस लाइन की हमने इक्वेशन को फाइंड करना है एंड अदर लाइन ओ पी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर हम ओ पी की स्लोप को फाइंड कर लेते हैं देन वी विल बी एबल टू find the slope of that line whose equation we have to be find. Now let us start. First of all we will be find the slope of line OP. Now students we will be find slope of OP. हमें O के कोऑर्डिनेट भी ज्ञात है एंड P के कोऑर्डिनेट भी ज्ञात है। So slope of line OP, slope of line OP, say this is M1. Now students, we know formula to find the slope, that is M y2 minus y1 over x2 minus x1. So in this case students x1 that is 0, y1 also 0 and x2 minus 2, y2 that is 9। अब स्लोप हमने इसकी m1 मान ली है। सो y2 माइनस y1 दैट इज 9 माइनस 0 over x2 minus x1 that is -2 and 0. So this becomes m1. Now students -9 over 2। ये तो स्लोप है लाइन OP की। लेट द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन m2। slope of second line, slope of second line जिसकी हमने इक्वेशन को फाइंड करना है। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन लेट हमने ये मान लिया है, लेट स्लोप ऑफ सेकंड लाइन
M2. Now students, both the lines are perpendicular to each other because both lines are perpendicular to each other. ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Therefore the product of both the slope means m1 and m2. both the slope, दोनों लाइन की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी? -1. नाउ m1 दैट इज -9/2 and m2 equal to -1. Minus cancels. m2 that is 2/9. अब स्टूडेंट्स हमने जिस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना था उसकी स्लोप हमने फाइंड कर ली है, दैट इज 2/9. नाउ स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन of straight line passing through point P whose coordinate -2 and 9. क्या होगी? यहां पर हम लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, that is y minus y1 equal to mx minus x1. So in this case x1 minus 2 y1 that is 9 and slope we have already find. So y minus 9 equal to m हमारे पास क्या है? 2/9 in bracket x minus x1 that is a -2. Now students, this becomes y minus 9 equal to 9 left hand side multiply and 2x plus 2 minus plus. So this becomes 9y minus 81 equal to 2x plus 4. Transpose 9y minus 81 to right hand side. What we got students? 2x minus 9y plus 4 plus 81 equal to 0. So this becomes 2x minus 9y plus 85 equal to 0. This is the required equations of the line which passes through -2 and 9. That is 2x minus 9y plus 85 equal to 0. तो इस सम में हमने स्टूडेंट क्या स्टेप फॉलो किए? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने इसकी स्लोप को फाइंड किया. प्रॉपर्टी क्या लगाई? स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इक्वल टू -1. ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज की. एंड आफ्टर दैट हमने पॉइंट स्लोप फॉर्मूले को यूज किया, दैट इज y minus y1 equal to mx minus x1. x1 y1 that is -2 and 9 and xy be the any point on the line. अब हमारे पास इक्वेशन क्या है लाइन की? 2x minus 9y plus 85 equal to 0. Now let us start the next sum. Now students, in the next sum, show that the points 1, 4, 3, -2 and -3 16 are collinear
and find the equations of straight line on which they lie. अब हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात हैं। हमने इस सम में ये प्रूफ करना है स्टूडेंट कि ये जो पॉइंट्स है क्लीनियर है, मीन्स लाइज ऑन द सेम लाइन, एंड सेकेंडली जिस लाइन पर ये एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, उस लाइन की हमने इक्वेशन को फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन of line through the equations of line through 1 4 and 3 minus 2। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं इस सम की एक रफली डायग्राम बनाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दैट इज 3 minus 2 and say this is 1 and 4। ये दो पॉइंट हैं ऑन द स्ट्रेट लाइन, मीन्स लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। एक के कोऑर्डिनेट है 3 minus 2, दूसरा है 1 and 4। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? वी नो वेरी वेल 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन मैंने करवा दी इन द प्रीवियस वीडियोस। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन आल्सो वॉच दैट वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस केस दैट इज x1 से 3 एंड y1 से -2 एंड x2 that is 1 and y2 that is 4. Now substitute all these values. Y minus y1 minus 2 equal to y2 4 minus y1 minus 2 over x2 1 x1 3 in bracket x minus x1 that is 3. Now y minus minus plus y plus 2 equal to 4 plus 2 over minus 2 x minus 3. Now again y plus 2 equal to 6 over minus 2 x minus 3, 2 cancel with 6, that is 3 here. So y plus 2 equal to minus 3 x minus 3. Now this becomes y plus 2 equal to minus 3x minus minus plus, that is 9. Now transpose minus 3x to left hand side to right hand side. What we get? 3x plus y equal to 9 minus 2. 3x plus y equal to 7. This is the required equations. Now students, अब ये तो दो पॉइंट लाई करते थे ऑन द स्ट्रेट लाइन, यहां तक तो अंडरस्टैंड है। अब तीसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -360। अगर स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं -316 आल्सो लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. So let us say this is equations number 1. Now put x equal to -3 and y equal to 16 in equation 1. So लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है इक्वेशन की, 3x plus y. So this becomes 3. Now x -3, y that is 16. So this becomes -9 plus 16 equal to 7 equal to right hand side. अब पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट -3 एंड 16 थे उसने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया है. हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर. पॉइंट्स आर कोलिनियर. एंड स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फर्दर इसको हम एलेबोरेट करें. 3x + y = 7. ये जो तीनों पॉइंट हैं इन ऑल पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ये आप पुट करके देख सकते हैं 1 and 4 दैट इज 3 × 1 3 एंड y दैट इज 4. 3 + 4 = 7. एंड सिमिलरली ये वाले कोऑर्डिनेट एंड इसको तो हमने प्रूफ कर ही दिया है. तो ऑल द पॉइंट्स आर क्लीनियर. ये तो पहले से ही अंडरस्टैंड था. 1 4 3 - 2 लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन जिसकी हमने इक्वेशन को फाइंड किया है. एंड इक्वेशन फाइंड करने के लेटर ऑन हमने थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया. उन कोऑर्डिनेट ने इस इक्वेशन को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है. सो दैट्स व्हाई ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर. In the next sum, students, what we have given? Find the equation of the straight line through the point -2 3 with slope -4. So students, हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है जो पॉइंट -2 3 कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के, इसमें से पास आउट कर रही है एंड हैविंग स्लोप -4. सो हियर वी विल बी यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म फॉर्मूला. सो स्टूडेंट्स, इन दिस केस m that is slope -4 and x1 y1 that is x1 -2 y1 that is 3. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वी विल बी यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म फॉर्मूला. दैट इज हियर m is the slope and p any point whose coordinate xy and q is a point whose coordinate x1 y1. So in this case x1 y1 we know and slope is also known. So here we will use a point slope form formula, that is y minus y1 m x minus x1. So in this case y minus y1 that is 3 equal to m that is -4 x minus x1 that is -2. So y -3 equal to -4x
minus minus plus minus 4 and multiply with 2, that is minus 8. So students y इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे 4x माइनस 3, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड प्लस 8 इक्वल टू 0. सो इक्वेशन बिकम्स 4x plus y plus 5 equal to 0. This is the required equations of a straight line. Students जो -2 3 से पास आउट कर रही है एंड हैविंग स्लोप -4. नेक्स्ट सम में स्टूडेंट हमें क्या दिया गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which intersect the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. For better understanding, मैंने इस सम की एक रफली डायग्राम बना ली है. दिस इज x-axis एंड y-axis. अब ये जो लाइन है इसकी हमने इक्वेशन को फाइंड करना है. ये y एक्सिस को अबव द ओरिजिन 2 यूनिट पर क्या कर रही है? क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. मीन्स y एक्सिस को एट अ 2 यूनिट पर मीट कर रही है and making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. अब यहां पर इस लाइन के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? इस पॉइंट पर से दिस इज द पॉइंट P. अब x की वैल्यू कितनी है? 0 एंड y की वैल्यू 2. दैट मीन्स जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट है 0 2, इसमें से पास आउट कर रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट 0 2. नाउ स्लोप ऑफ लाइन, slope of line, that is m tan alpha. So in this case students, alpha 30, so tan 30 degree, that is m equal to 1 over under root 3. Now equations of straight line passing through say point P whose coordinate 0 2. Now again students, we will be use point slope form formula. What is the point slope form formula? Y minus y1 m x minus x1. So in this case x1 that is 0 and y1 that is 2. So y minus y1 that is 2 equal to slope 1 over under root 3 x minus x1 that is 0. So students, this becomes y minus 2 equal to 1 over under root 3 multiply by x. Multiply both sides with the under root 3. What we get? Under root 3y minus 2 under root 3 equal to x. So equation becomes x minus under root 3y plus 2 under root 3 equal to 0. This is the required equations of a straight line
which is passing through point P whose coordinate 0 2 and making an angle 30 degree with the positive direction of x axis. In the next some students, what we have given, show that the straight line which passes through the point 412. तो एक लाइन है स्ट्रेट लाइन जो passing through the point 412 and this line makes an angle tan inverse 3 with the x axis. प्रूफ क्या करना है इसमें, passes through the origin. ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, it also passes through the origin. Means origin के coordinate we know very well, that is 0 0. So in this case students we have alpha means angle tan inverse 3, tan inverse 3. So which imply tan alpha equal to 3. अब स्लोप का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, दैट इज m tan alpha. So we have slope of this line 3. नाउ ये जो लाइन है ये पासिंग थ्रू द पॉइंट 412. तो यहाँ पर हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूले को यूज करेंगे, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1. सो in this case x1 that is 4 and y1 that is 12. y minus y1, y minus 12 equal to slope that is 3, x minus x1 that is 4. So y minus 12 equal to 3x minus 12. So 12 both are equal, minus 12 cancel out, y equal to 3x. अब हमने प्रूफ क्या करना था स्टूडेंट, दिस लाइन आल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन. मीन्स x की वैल्यू अगर 0 हो, इफ द वैल्यू ऑफ x 0 देन y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, y इज आल्सो 0. तो यही हमने क्या प्रूफ करना था. दिस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट, 0 0. सो व्हेन x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आल्सो सेटिस्फाई करती है. मीन्स ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x. नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या थी, y इक्वल टू 3x. अब ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 412. अब ये ओरिजिन से भी पास आउट कर रही है, कैसे, व्हेन x की वैल्यू 0 y की वैल्यू भी क्या है 0 आ रही है. दैट मीन्स ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करती है जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी क्या है 0 है. दैट मीन्स दिस लाइन आल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन. यही हमने प्रूफ करना था.